آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں۔ موسم کی تبدیلی شہریوں کی صحت پر بھاری۔ ملتان کے بڑے سرکاری اسپتال مریضوں سے بھر گئے۔ اسپتالوں کے میڈیسن وارڈز میں مریضوں کا رش بڑھ چکا۔ نزلہ، زکام، بخار، وائرل انفیکشن کی صورت حال اختیار کر گئی۔ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں مریض وائرل انفیکشن کا شکار ہو کر سرکاری اسپتالوں میں رپورٹ ہونے لگے۔ موسم کی اچانک تبدیلی شہریوں کی صحت پر بھاری پڑنے لگی۔ نزلہ، زکام، بخار اور وائرل انفیکشنز نے شدت اختیار کر لی، جس کے باعث شہر کے بڑے سرکاری اسپتال مریضوں سے بھر گئے ہیں۔ نجی اسپتال کے میڈیسن وارڈ 7، 8، 10 اور 11 میں گنجائش سے زیادہ مریض داخل ہیں۔ دیکھیں، جیسے ہی سردی بڑھی ہے تو نزلہ، زکام اور کھانسی کے جو کیسز ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ نارملی ہر سال ایسا ہوتا ہے۔ تو میں عوام سے یہی کہوں گا کہ نزلہ، زکام اور کھانسی سے بچنے کے لیے آپ پہلے سردی سے بچاؤ کریں، اور اپنے ہاتھ جو ہے نا صابن سے بار بار دھوئیں، اور بھیڑ میں، رش میں فاصلہ رکھیں ایک دوسرے سے، اور اگر چھینک وغیرہ یا کھانسی لگی ہوئی ہے تو آپ ماسک کا استعمال کریں، اور جو ہے نا سوذنگ ایفیکٹ گلے کے لیے جیسے چائے، کافی، سوپ وغیرہ اس کا استعمال بڑھا دیں۔ گورنمنٹ شباز شریف ہسپتال میں روزانہ 200 سے زائد مریض وائرل انفیکشن کے باعث لائے جا رہے ہیں، جبکہ چلڈرن ہسپتال میں سردیوں کے باعث نمونیا میں مبتلا بچوں کی تعداد بھی تشویشناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ نیشنل 2 اور ساؤتھ سٹی ہسپتال کے علاوہ نجی کلینکس پر بھی درجنوں مریض روزانہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ وائرل انفیکشن میں اینٹی بایوٹکس کا کوئی رول نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وائرل انفیکشن 7 سے 14 دن کا ان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ڈیفرنٹ وائرس کا ڈیفرنٹ سائیکل ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ نے جو ہوتا ہے جسم کو اگر بخار وغیرہ آ رہا ہے، درد ہو رہا ہے، اس میں پیرنڈال اور جو ہے اینٹی الرجک دیتے ہیں، سودرنگ ایفیکٹ دیتے ہیں، اور ریسٹ کرتے ہیں، فلوئڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ جب اس کا سائیکل پورا ہوتا ہے اس نے خود ہی ٹھیک ہو جانا ہوتا ہے۔ اینٹی بایوٹک میرے خیال میں نہیں لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہم انہیں سختی سے منع کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے شہریوں کو موسم کے مطابق احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور غیر ضروری اینٹی بایوٹکس کے استعمال سے گریز کا مشورہ دیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ گوہر رحمان، شیخ روحی، ملتان۔ بہاولپور میں آٹے کا بحران، خریدار پریشان۔ شہریوں نے ٹریکنگ پوائنٹس پر سرکاری ریٹ پر دستیاب آٹے کی کوالٹی کو ناقص قرار دے دیا۔ دوسری طرف ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر نے آٹے کے بحران سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ بہاولپور میں آٹے کا بحران سر اٹھانے لگا۔ 10 کلو تھیلا 900 سے بڑھ کر 1200، 20 کلو کا تھیلا 1950 تک پہنچ گیا۔ شہریوں نے ٹرکنگ پوائنٹس پر سرکاری ریٹ پر آٹا نہ ملنے کی بھی شکایت کی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ جن ٹرکنگ پوائنٹس پر سرکاری ریٹ میں آٹا مل رہا ہے وہ کھانے کے قابل نہیں۔ ٹرکنگ پوائنٹس پر سرکاری آٹا فروخت نہیں کیا جا رہا، صرف ڈسپلے کے لیے رکھا گیا ہے۔ اگر وہ لگا ہوا تو ڈسپلے پہ ہے، وہ دیتے نہیں ہے کسی کو بھی۔ اور جو آٹا انہوں نے ہمیں مارکیٹ سے ہم جو آٹا اٹھا رہے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں 1200 روپے میں، اور جو 15 کلو کا جو آٹا اٹھا رہے ہیں وہ ہم اٹھا رہے ہیں 1850 میں۔ تو وہ ہمیں بہت، کل بھی ریٹ بڑھا ہے، پرسوں بھی ریٹ بڑھا ہے، روزانہ ریٹ بڑھ رہا ہے۔ ہوٹل مالکان کا کہنا تھا کہ گندم کے ریٹ میں مسلسل اضافہ کے باعث آٹا مہنگا ہو رہا ہے۔ آٹا مہنگا ہونے پر روٹی کے مقرر کردہ سرکاری ریٹ بھی بڑھنے چاہیے۔ سستے آٹا کے اصول میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ روزانہ تازہ 1 سے 1.5 کلو آٹا خریدنے والے مزدور طبقے کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ آٹا بالکل غائب ہے، مافیا گروپ نے آٹا چھپا رکھا ہے، مافیا گروپ نے آٹے کا ریٹ مسلسل ڈیلی بڑھ رہا ہے۔ تو ہم ہوٹلوں والے پریشان ہیں، گھریلو مسئلے جو تازے والے ہیں 1 کلو آٹا لے کے جاتے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں ہم۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے کہ اپنا یہ اس کے اوپر قابو پائیں۔ ادھر ڈی ایف سی ذوالفقار احمد کا کہنا تھا کہ شہر کے 10 سے زائد پوائنٹس پر آٹا سرکاری ریٹ پر دستیاب ہے۔ ملوں کو 3000 فی من ریٹ پر گندم جاری کی جا رہی ہے۔ ملیں سرکاری ریٹ پر آٹا مہیا کرنے کی تھیلا 910 اور 20 کلو کا تھیلا 1810 روپے میں دستیاب ہے۔ امین شاہ سکلین کے ساتھ طاہر جدھیانہ، روہی، بہاولپور۔ میاں والی میں آٹے کے نرخ میں اضافہ، گندم کی بوری کی قیمت 11,000 روپے تک پہنچ گئی۔ مصنوعی قلت کے باعث شہری مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ گندم کی بوری کے سرکاری نرخ 7500 روپے مقرر ہے، مگر مارکیٹ میں قیمت 11,000 روپے تک پہنچ گئی۔ چکی مالکان آٹا 120 سے 130 روپے کلو فروخت کر رہے ہیں۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی کے باعث غریب آدمی کے لیے پیٹ پالنا مشکل ہو گیا ہے۔ گورنمنٹ نے ریٹ مقرر کیا ہے اس سے تو 8 گنا زیادہ ہو چکا ہے۔ دیکھیے 11,000 سے بھی میرا خیال ہے کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ اگر ہم غریب کیا کریں، کیونکہ مین جو چیز ہوتی ہے کھانے کی خاص کر یہ گندم ہی ہوتی ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ نرخوں میں اضافے کی وجہ سے گندم کی ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت ہے۔ آڑھتیوں کو سرکاری نرخ پر گندم کی فروخت کا پابند کیا جائے۔
گندم کے ریٹ دن پر دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں. پہلے 10,000 ہوئی ہے, پھر 10,500 ہوئی ہے, اب 11,000, 11,200, 300 روپے بک رہی ہے منڈی میں. ہم بھی یہاں پر پلےداری وغیرہ کرتے ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ ہمیں ریلیف دی جائے. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے خود ساختہ مہنگائی مافیا کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز, روہی میاں والی. مظفر گڑھ شہر میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ طویل ہونے لگا. گھریلو صارفین ہوں یا ہوٹل مالکان, سبھی کو سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث مشکلات کا سامنا ہے. ہوٹل مالکان کے مطابق بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے سلنڈر اور لکڑیاں بھی استعمال نہیں کر سکتے. کوئلے کی قیمت 130 روپے فی کلو جبکہ لکڑی 1400 روپے فی بند تک پہنچ چکی ہے. مظفر گڑھ میں شدید سردی کے دوران شہری دوہرے عذاب میں مبتلا. سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ بڑھتے ہی خشک لکڑی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. شہری کہتے ہیں گزشتہ سال 800 سے 900 روپے من ملنے والی لکڑی اس سال 1400 روپے فی من فروخت ہو رہی ہے. گیس تو پہلے ہی دستیاب نہیں, مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کی کمر ٹوٹ چکی ہے. پہلے یہ تقریباً 700 سے 800 روپے من تھا جب سے سردیاں ہیں. آج اس کی قیمت 1500 روپے من گئی ٹھہری ہے. غریب آدمی ہیں, کہاں سے لیں لکڑی؟ پہلے تو گزارا بسر ہو رہا تھا, سستی تھی. اب دوسری چیزیں بھی مہنگائی ہو چکی ہے, اب لکڑی کی قیمت میں بھی 1500 روپے من ہو چکی ہے, کہاں سے لیں؟ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹال مالکان لکڑی کے من مانے ریٹ وصول کر رہے ہیں مگر کوئی پوچھنے والا نہیں. گزشتہ سال کے نسبت اس مرتبہ لکڑی کی قیمت میں 30 سے 35% کا اضافہ ہوا ہے. دیہاری ہے جو 1000 روپے ہے, 800 روپے کلو گھی ہے اور 1500 روپے من لکڑی ہے, کہاں سے پکائیں بچوں کو, کیا کھلائیں؟ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ سوئی گیس دستیاب نہ ہونے سے سردیوں میں متبادل ذرائع استعمال کرنے پر مجبور ہیں. لکڑی اور کوئلے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اعلیٰ حکام نوٹس لیں تو خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. عامر ڈوگر, روہی, مظفر گڑھ. ملتان کے عوام کو دوہری مشکل کا سامنا. شدید سردی کا سامنا کرنے کے ساتھ شہری بڑھتی مہنگائی سے بھی پریشان. ضلع انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام. شہری مہنگے داموں سبزیاں پھل خریدنے پر مجبور. ملتان کے عوام شدید سردی کے ساتھ خود ساختہ مہنگائی سے بھی پریشان. ضلع انتظامیہ شہریوں کو ریلیف دینے میں ناکام. شہری مہنگے داموں سبزیاں پھل خریدنے پر مجبور. سرکاری ریٹ لسٹ میں صرف میتھی ہی سب سے سستی سبزی ہے. مارکیٹ میں میتھی 40 روپے فی کلو دستیاب جبکہ اس کا سرکاری ریٹ 18 روپے فی کلو مقرر ہے. سرکاری نرخوں میں پیاز 40, ٹماٹر 60, ساگ 50 اور چقندر 60 روپے فی کلو مقرر. عام مارکیٹ میں پیاز 70, ٹماٹر 80, ساگ 80 اور چقندر 100 روپے فی کلو دستیاب. سرکاری ریٹ لسٹ میں ادرک 252, لہسن 304, سوہانجنا 230, کھیرے اور گاجر 35 روپے فی کلو مقرر. عام مارکیٹ میں ادرک 350, لہسن 400, سوہانجنا 300, کھیرے اور گاجر 50 روپے فی کلو دستیاب ہیں. پھل بھی عام شہری کی پہنچ سے باہر ہیں. سرکاری نرخوں میں لاڑکانہ امرود 130, انار 500, پپیتا 250, چیکو 240 روپے فی کلو مقرر. مارکیٹ میں امرود 250, انار 650, پپیتا 350 اور چیکو 300 روپے فی کلو فروخت. سرکاری ریٹ لسٹ میں خربوزہ 125, سیب 322 روپے فی کلو مقرر. مارکیٹ میں خربوزہ 250 اور سیب 400 روپے فی کلو دستیاب. سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق فروٹر 90 روپے فی کلو جبکہ کیلے 120 روپے فی درجن ہیں. ضلع انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ شہری سستے داموں سبزیاں پھل خرید سکیں. کیمرامین عرفان اسلم کے ساتھ سلمان ضمیر, روہی, ملتان. رحیم یار خان کے بازاروں میں الیکٹرک گاڑیاں دوڑنے کو تیار. ماڈل بازاروں میں شہریوں کی سہولیات کے لیے الیکٹرک کاریں پہنچ گئیں. ماڈل بازار کا جدید طرز پر تعمیراتی کام تیزی سے جاری. رحیم یار خان ضلع انتظامیہ کا شہری سہولتوں میں اضافہ کے لیے احسن اقدام. ماڈل بازاروں کے لیے الیکٹرک کاریں پہنچا دی گئی ہیں جن کے ذریعے خریدار, بزرگ, شہریوں اور خواتین کو آسان, محفوظ, ماحول دوست سہولیات فراہم کی جائے گی. ہمارے ڈی سی صاحب ظہیر انور جفا صاحب, انہوں نے ان کو ہمیں 25 جنوری تک ڈیڈ لائن دی ہے کہ بازاروں کو کمپلیٹ کرے. ہوپ فلی ہم کر دیں گے کیونکہ میجر کام ہو چکا ہے, جو تھوڑا سا واپڈا کی وجہ سے آ رہا ہے ہرڈن. اور باقی الیکٹرک گاڑیاں آ گئی ہیں, پہنچ گئی ہیں. وہ الیکٹرک گاڑیوں کا مقصد یہی ہے کہ جب ہم لوگوں کو ٹریفک اندر نہیں آنے دیں گے, کوئی لیڈیز ایسی ہوتی ہیں, کوئی بندے ضعیف ہوتے ہیں, کوئی بندہ ویسے بھی آنا جانا چاہے تو ان بازاروں میں چلیں گی وہ, تو ان کے لیے باقاعدہ ہم نے سپیس دی ہوئی ہے. سائڈوں پہ گملے بھی ہوں گے اور یہاں صرف پنکھے نہیں اور بینچ بھی لگیں گے. ضلع انتظامیہ کی زیر نگرانی نیو صادق بازار, عقب صادق بازار, جامع قادریہ روڈ, انارکلی بازار اور تار گھر والی گلی کو ماڈل بازاروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے. ان بازاروں کو مکمل طور پر وہیکل فری زون بنایا جا رہا ہے جہاں پیدل چلنے والوں کو صاف ستھرا منظم ماحول فراہم کیا جائے گا. ماڈل بازاروں میں ٹف ٹائل کی تنصیب, فائبر شیٹس کی چھتیں, پنکھے اور شہریوں کے بیٹھنے کے لیے آرام دہ بینچ بھی لگائے جا رہے ہیں تاکہ خریداری ایک خوشگوار
तजर्बा बन सके। रहीम यार खान की बाजार अब सिर्फ खरीदारी का मरकज नहीं बल्कि तरक्की, सहूलत और जदीद शहरी मनसूबाबंदी की मिसाल बनने जा रहे हैं। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। इंतजामी एक्शन के बाद घरेलू सारिफीन को एलपीजी के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना। शहरी कहते हैं 1 किलो गैस खरीदने के लिए भी शायद शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला भर में इंतजामिया और सिविल डिफेंस हुकाम गैर कानूनी गैस रिफिलिंग सेंटर्स के खिलाफ मुतहर्रिक हो गए। रिफिलिंग सेंटर्स को मुस्तकिल बुनियादों पर सील करके शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी कार्रवाइयां जारी हैं। दूसरी तरफ इन कार्रवाइयों से मजदूर और दिहाड़ीदार तबके के लिए घरों का चूल्हा जलाए रखना शदीद मुश्किल हो गया है। सार्फिन का कहना है कि इंतजामिया कार्रवाई जरूर करे मगर ऐसे गरीबों का भी ख्याल रखे जो 12 किलो का घरेलू सिलेंडर नहीं खरीद सकते और अपनी बिसात के मुताबिक किलो 2 किलो गैस खरीद कर गुजारा कर रहे हैं। गैस में पहुंचाई जाए या गैस दी जाए। हमारे चूल्हे ठंडे में पड़े हैं, सर्दियों का मौसम में गैस नहीं मिल रही हमें। सब दुकानें बंद हैं, परेशानी है बहुत ज्यादा, घर रोटी नहीं बन रही और ताज़ी 1 किलो 2 किलो गैस भरवानी होती है, वो दुकानें बंद हैं, कहाँ से भरवाएं। दिहाड़ीदार 700 रुपए दिहाड़ी लेता है, 200 रुपए गैस दिलवा के 2 दिन का वक्त को पास करता है। मेहरबानी करें आप, हम गरीबों पर मेहरबानी करें। मारे फिरते हैं, कितों गैस नहीं मिलती पई, घर रोटी नहीं पकती पई। किलो 2 किलो वाले उन्हें मजदूरी करते, शाम को ताज़ी गैस भरवानी होती है। गैर कानूनी गैस रिफिलिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाइयों से इंतजामिया की कारकर्दगी और कानून की बालादस्ती वाज़ेह तौर पर सामने आई है। ताहम सार्फिन की अपील है कि इंतजामिया कानून की बालादस्ती के साथ साथ इनका चूल्हा जलाए रखने के लिए भी इकदामात करे। कैमरामैन सज्जाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रोही, लोधरा। मुल्तान शहर के फ्लाईओवर्स पर नस्ब सेफ्टी वायर और पोल चोरी होने लगे। फ्लाईओवर्स के साथ लटकती बिजली की तारें भी शहरियों की जिंदगी के लिए खतरा बन गई। जिले इंतजामिया खामोश, शहरियों ने हुकाम से मामले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मुल्तान के फ्लाई ओवर्स पर करोड़ों रुपए मालियत के लगाए गए पोल्स और सेफ्टी वायर्स गायब। जिला इंतजामिया खामोश, नामालूम चोरों के मजे हो गए। शहरियों ने सूरत हाल पर इजहार तशवीश करते हुकाम से मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। इंतजामिया का कोई पता नहीं है। इंतजामिया हालांकि यहाँ से डीसी या जो भी हैं गुजरते तो हैं, नजर भी आता है उनको, कई सालों से ये हो रहा है, लेकिन तवज्जो नहीं है। इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। आए रोज़ कोई ना कोई सान्या पेश आता है, तो वो वजह इसके पीछे अगर देखी जाए तो यही होती है। शेरशाह फ्लाईओवर्स पर लोहे के जंगले के साथ बिजली की लटकती तारें शहरियों की जिंदगी के लिए खतरा बन गई। गिलानी, कचहरी चौक, कुम्हारा वाला, कलमा चौक और दीगर फ्लाईओवर्स पर आए रोज तारें और पोल चोरी हो रहे हैं। शहरी कहते हैं लटकती तारों किसी बड़े हादसे का बायस बन सकती हैं। ये हुकूमत ने लगाई थी अवाम की सेफ्टी के लिए, तो ये हादसे का सबब भी बन सकती हैं। ये तारें अक्सर लोग चोरी करके चले जाते हैं और नंगी तारें भी पड़ी हुई हैं, तो इनको सही किया जाए और भाई अवाम की देखभाल करें। शहरियों का मजीद कहना था कि सेफ्टी तारें और पोल लगाने का मकसद शहरियों की हिफाजत है। चोरी की रोकथाम के लिए इंतजामिया को कैमरे नस्ब करने चाहिए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला रोड का तामीराती काम 3 साल के बाद भी मुकम्मल ना हो सका। रोड डिवाइडर और ग्रीन बेल्ट का काम सुस्त रवि का शिकार, स्ट्रीट लाइट्स का भी फुकदान। मुल्तान का अहम हेड मोहम्मद वाला रोड 3 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। रोड डिवाइडर और ग्रीन बेल्ट की तामीर सुस्त रवि का शिकार है। स्ट्रीट लाइट्स के फुकदान के बायस रोड पर हादसात और डकैती की वारदातें भी मामूल बन गई हैं। शहरियों का कहना था कि कई सालों से इस रोड पर काम जारी है। इंतजामिया को कई बार दरख्वास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। कभी फंड्स का रोना रोया जाता तो कभी ये रोड सियासत की नजर हो जाता है। लैंड भी नहीं होते तो आपको जो ना 4 बजे 5 बजे हमको जाना पड़ता है, अंधारा हो जाता है, गाड़ियों को कोई समझ नहीं आते, लाइट कोई भी नहीं आती, आपको कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं। जैसे ये खड्डे शड्डे हैं, गाड़ियाँ खड्डे हो जाते हैं, थोड़ा सा आगे जाए तो सारा रोड टूटा हुआ है। बस वो जो है ना दरिया का जो पुल है ना, उस पर कोई लाइटें शटर लगी हुई है, उससे और कुछ भी नहीं है। शहरियों ने इंतजामिया से हेड मोहम्मद वाला रोड का काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर का बहावलपुर बाईपास रोड टूट फूट का शिकार है। खस्ताहाल सड़क पर सफर करने में शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है कि टूटी फूटी सड़क पर मुतादिद हादसात हो चुके हैं मगर इंतजामिया के कान पर जू तंग रींग रही। मुल्तान का बहावलपुर बाईपास रोड इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर। वासा इंतजामिया ने 8 माह पहले सीवरेज लाइन बिछाने के लिए सड़क खोदी थी मगर ताहाल उसे मुरम्मत नहीं किया जा सका। 9 किलोमीटर टूटे फूटे रोड का टुकड़ा शहरियों की जान का दुश्मन बन गया। शहरी कहते हैं स्पीड से आने वाली ट्रैफिक को एकदम टूटी फूटी सड़क का सामना होता है जिसकी वजह से कई हादसात हो चुके हैं। ये तकरीबन 7-8 माह हो गए हैं ऐसे पड़ा है और आए रोज कोई ना कोई हादसा जरूर होता है।
कभी जानी माली नुकसान तो ज़रूर ही है। रात को दिन को जो दूर से गाड़ी आ रही है उन्हें क्या पता आगे जंप है, रोड टूटा हुआ है, एकदम ब्रेक लगाने से आगे पीछे गाड़ी लगती हैं, नुकसान ज़रूर है जानी माली। तकरीबन 7-8 माह हो गए हैं यही हशर देख रहे हैं। शहरियों का कहना था कि बहावलपुर बाईपास रोड से हैवी ट्रांसपोर्ट का भी गुजरना होता है। उड़ती धूल के बाइस ताजिर बरादरी दमे की मरीज बन चुकी है। 12 मरतबा जिला इंतजामिया को दरखास्त कर चुके हैं मगर ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। स्पीड से गाड़ी आती है ना, पीछे वाली जो गाड़ी होती है उसको बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं चलता वो आगे खड्डा है या नहीं है। इसलिए जो मेहरबानी करें आप रोड की जो है ना बना दें आप रोड। शहरियों का मजीद कहना था कि इंतजामिया फिलफौर टूटी फूटी सड़क की तामीर और मुरम्मत कराए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। शहर औलिया का सिटी पार्क इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर। शहर की पोश कॉलोनी में वाक़ सिटी पार्क की हालत खस्ताहाल हो गई। पार्क में घास है, ना ही शहरियों के लिए वॉकिंग ट्रैक मौजूद। इलाका मकीनों के लिए वाहिद तफरीह गाह खंडरात का मंजर पेश करने लगी। मट्टी और पत्थरों की वजह से इलाका मकीन इंतजामिया से शिकवा करते नजर आते हैं। मुल्तान में शहरियों के लिए तफरीही सहूलियात की शदीद कमी। इंतजामिया आबादी के तनासब से तफरीही पार्क बनाने में नाकाम। शहर में जो पार्क मौजूद हैं वो देखभाल ना होने की वजह से खस्ता हाल हो रहे हैं और शहरियों का वर्जिश करना, बच्चों नौजवानों का पार्कों में तफरीह ना करना वक्त के साथ इंतजामिया के लिए चैलेंज बन रहा है। शहर की पोर्श कॉलोनी में वाक़िया सिटी पार्क की हालत इंतजामिया की अदम तवज्जो की बाइस बद से बदतर हो गई। इलाका मकीन के लिए पार्क में ना वॉकिंग ट्रैक हैं और ना ही चलने फिरने के लिए घास मौजूद है। इलाका मकीनों के लिए बनाया गया वाहिद पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगा। इलाका मकीन कहते हैं कि इस पार्क की हालत एक अरसे से खराब है। मालियों के मुताबिक पार्क में जेरे जमीन बहुत कचरा मौजूद है जिसकी वजह से पार्क में घास नहीं उगती। घास तो होते ही नहीं, वो कहते हैं ये होते ही नहीं। यहाँ जो घास इसलिए नहीं होता कि नीचे कचरा है इसके, और है भी कचरा मानने की बात है क्योंकि मिट्टी इसमें पड़ेगी ज्यादा तो फिर जाके ये पौधे शौधे ये सेट होंगे। मिट्टी नहीं है नीचे इसके। अब ये खड्डे निकले हुए हैं, ये देखो, इसके 1 फुट नीचे जाओगे तो सारा कचरा है, शापर वगैरह। ये 20 फुट खड्डा होता था, 20-30 फुट खड्डा। इंतजामिया सिटी पार्क के मसाइल को फौरी तौर पर हल करे ताकि इलाका मकीनों को अच्छी तफरीह के मौके मिल सकें। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ अजला के डीसीज शहरी सहूलियात की फराहमी के लिए सरगर्म। बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर हसन रजा ने ड्रिंक स्टेडियम में पैराफोर्स की भर्ती के इंतजाम का जायजा लिया। उधर डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ने तारीखी मकाम पतन मीनारा की बहाली के इक़दामात का मुआयना किया। डीसी भावलपुर ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस, जनरल बस स्टैंड और सिलानी दस्तरखान का भी मुआयना किया। डायरेक्टर पीएचए इमरान रफीक ने डीसी को ग्रीन बेल्ट्स और चौकों की तज़ीन और आराइश बारे ब्रीफिंग दी। डीसी का कहना था कि शहर की खूबसूरती के लिए तरक्याती काम जारी हैं। ग्रीन बेल्ट्स में बिजली के खंभों पर लाइट्स फाल की जा रही हैं। उधर डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान जहीर अनवर का तारीखी मुकाम पतन मनारा का दौरा। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तालिब हुसैन रंधावा से पतन मनारा की बहाली के इक़दाम बारे ब्रीफिंग ली। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पतन मनारा शहर की तारीखी शनाख्त और सकाफती विरसा है, इसे महफूज बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने चक 107 में मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का भी दौरा किया। एमपी अली हैदर नूर नयासी की ज़ेरे सदारत तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास। डिप्टी कमिश्नर असद अब्बास मक्सी और मुतालिका अफसरान ने इजलास में शिरकत की। इजलास से खिताब में अली हैदर नूर नयासी ने कहा कि तामीर और तरक्की के मंसूबों को जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस इल्तवा का शिकार मंसूबों के फंड्स बारे इदारों को लिखा जाए। बाजार के तामीराती कामों को स्पीडअप करके फौरी मुकम्मल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर ने एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी के हमरा सफाई सुथराई और स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर का कहना था कि शहर की खूबसूरती और शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्तान समेत मुल्क भर में साबिक वजीर आजम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की 98वीं सालगिरह मनाई गई। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेरे तमाम मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिनमें शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत पेश किया गया। आपका वजीर आजम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की 98वीं सालगिरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद। मरकजी तकरीब मुल्तान प्रेस क्लब में सजाई गई, जहाँ साबका मेंबर सूबाई असम्बली सैयद अहमद मुजतबा गिलानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर केक काटा गया और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को खराज अकीदत भी पेश किया गया। हम लोग सारे इकट्ठे हैं ताकि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को
खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश कर सकें। ऐसी अजीम हस्ती जिसको सारी दुनिया मानती है, वो एक मुनफरिद इंसान थे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बैनुल अक़वामी शख्सियत थे और उनके नज़रिए और सोच ने एक पूरे पिसे हुए तबकात को मुसावी तौर पर उनके हम कलम लाने पर जो किरदार अदा किया है वो तारीख का हिस्सा है। आज भी आप देखें कि न्यूयॉर्क का मेयर भी रोटी कपड़ा और मकान का नारा मार रहा है और ये फलसफा और ये सोच कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी। डिस्ट्रिक्ट बार हॉल में पीएलएफ ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की सालगिरह तकरीब का इनेकाद किया। सदर पीएलएफ का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भुट्टो का अदालती कत्ल साबित कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, 1963 का आइन दिया और आलम इस्लाम को मुत्तहद किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की आज 98वीं सालगिरह है और आज वो शख्सियत पैदा हुई, भुट्टो खानदान में वो शख्सियत पैदा हुई जिसने पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया और जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया और पाकिस्तान के जो जंग में जो जंगी कैदी थे वो जंगी कैदी भी वापस लाए और अपना जो रकबा गस्ब किया हुआ था भारत ने वो भी वापस लाए। सूबाई हल्का पीपी 218 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर महार इमरान के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 98वीं सालगिरह पर तकरीबात का इनेकाद। कारकुनों ने पार्टी परचम लहराए और केक काटे। जियालों ने कायदे अवाम को खिराज अकीदत भी पेश किया। बहावलपुर में बानिया पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 98वें यौम पैदाइश पर तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर पीपल्स पार्टी मलिक इम्तियाज चन्नड़ के फार्म हाउस पर जयालों ने पार्टी परचम थामे कायदे अवाम को सलाम पेश किया। मलिक इम्तियाज चन्नड़ का शुरका से खिताब में कहना था कि पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को हर कीमत पर जारी रखेगी। लिया में भी पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की 98वीं सालगिरह मनाई। इस हवाले से जिले सेक्रेटेरिएट में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में एडिशनल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब रमजान बुल्लर ने खुसूसी शिरकत की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा गया। सरगोदा यूनिवर्सिटी शोबा मास कम्युनिकेशन के ज़ेरे तमाम सेमेस्टर असाइनमेंट्स पर खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने अपने तख्लीकी और तहकीकी प्रोजेक्ट्स पेश किए। सेमिनार के इस हवाले से तफसीलात शेख उस्मान की रिपोर्ट में देखिए। सरगोदा यूनिवर्सिटी मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में सेमेस्टर के इख्तिताम पर असाइनमेंट पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के दौरान तलबा और तालिबात ने अपनी अपनी असाइनमेंट पर मबनी प्रोजेक्ट पेश किए, जिनमें शुरका ने भरपूर दिलचस्पी ली, जिनमें डिजिटल और प्रिंट मीडिया से मुताल्लिक मुख्तलिफ मौज़ूआत शामिल थे। तलबा ने जदीद मीडिया के रुझानात, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के मौसर इस्तेमाल, सोशल मीडिया के असरात और प्रिंट मीडिया की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर असातिज़ा ने तलबा की मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि ऐसे तालीमी प्रोग्राम तलबा की इल्मी तरबियत में अहम किरदार अदा करते हैं। मेरे जो प्रोजेक्ट का नाम है हिस्ट्री ऑफ सरगोदा। बेसिकली मैं अपने शाहीनों के शहर सरगोदा की पीछे हिस्ट्री बताना चाहती हूँ, लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, इसलिए मेरे प्रोजेक्ट का नाम हिस्ट्री ऑफ सरगोदा है। मेरा प्रोजेक्ट कंपनी पार्क के ऊपर था, जो सरगोदा की एक पहचान है और हिस्टोरिकल प्लेस है। हमें इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटी आगे फर्दर इन चीज़ों को मजीद कंडक्ट करे। असातिज़ा ने तलबा की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें मुस्तकबिल में भी तहकीकी और तख्लीकी काम जारी रखने की तलकीन की। कैमरामैन अली रजा के साथ शेख अदनान, रोही, सरगोदा। रहीम यार खान के अब्बासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट की गहमा गहमी जारी। मुल्क भर से 39 टीमों की शिरकत इवेंट को कौमी रंग दे दिया। अल्फ्रीद क्रिकेट टूर्नामेंट में 16वें रोज यूनाइटेड क्रिकेट क्लब लियाकतपुर और माछी गोट क्रिकेट क्लब में टाकरा हुआ। मैच में यूनाइटेड क्रिकेट क्लब ने 4 विकेट से कामयाबी हासिल कर ली। शायकीन क्रिकेट बेहतरीन खेल से खूब लुत्फअंदोज हुए। रहीम यार खान के अब्बासिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में क्रिकेट का रंगारंग मेला जारी। अल्फ्रीद क्रिकेट टूर्नामेंट के 16वें रोज यूनाइटेड क्रिकेट क्लब लियाकतपुर और माछी गोट क्रिकेट क्लब आमने सामने आए। यूनाइटेड ब्लू क्रिकेट क्लब ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए मैच 4 विकेट से जीत लिया। माछी गोट मकबूल क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग की और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 139 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में यूनाइटेड ब्लू क्रिकेट क्लब ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया और 18
11.4 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 140 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। यूनाइटेड ब्लू के अली ने 43 गेंदों पर शानदार 56 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ने शानदार खेल पर खिलाड़ियों को भरपूर दाद दी। खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे बड़े टूर्नामेंट से न सिर्फ नए टैलेंट को सामने आने का मौका मिलता है बल्कि रहीम यार खान खेलों का नया मरकज भी बनता जा रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे फील्डिंग करना, किसी पे मतलब के बैटिंग करना, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। मकबूल क्रिकेट क्लब ने 3 ओवर में 24 रन किए हैं, बगैर विकेट गिराए। अच्छी विकेट है, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में ऐसा टूर्नामेंट देखा ही नहीं है, पहली दफ़ा हम खेलने आए हैं और ऐसे लग रहा है पूरे पाकिस्तान से प्लेयर आए हुए हैं। अल फरीद क्रिकेट टूर्नामेंट में मुल्क भर से 39 टीमें शरीक हैं और ये 25 रोजा इवेंट जनूबी पंजाब में क्रिकेट के फरोग, नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब रागिब और खेलों का म्यार बुलंद करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।